ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोत्साहित का इंतजार कर रहे थे और ये रोड शो अभी शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री गुरु संकट से ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ.
ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ. प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की नारायण जो पालिका है इस क्षेत्र क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು CTVಯ ಕಳಕಳಿ.
ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ.
बैंगलोर करावल क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी हमें साल 1 से बीजेपी यहाँ से जीत ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಟಿವಿಯ ಕಳಕಳಿ. ಮತದಾನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಓಟು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ.
हासिल करती आई है। बीजेपी के लिए एक गढ़ माना जाता है और बीजेपी इस क्षेत्र में आज प्रधान रोड शो का आयोजन है, तो हजारों की संख्या में हम लोगों को देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का एक सुनामी वेव यहाँ पर नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कोयम्बतूर हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड
शो के लिए जुड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो विकसित भारत का विजन
करते रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष है, और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार मैदान में नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सेनापति हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वो अपने खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने बदले में अपने दामाद को वहां से टिकट दिलवाया है। तो आप ये सोचिए कि इसका डिफरेंटली एक इम्पैक्ट होता है जब सेनापति खुद जो कमांड चीफ होता है पार्टी का और वो चुनाव में नहीं होता है। जैसे तरह से आप ये देखिए कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भी राज्यसभा पहुंच गई है, तो यूपी में देखिए उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये जो है वो सिर्फ नैरेटिव से नहीं बनता है, वो परसेप्शन आप अपना नैरेटिव तब बनाते हैं जब आप लोगों के बीच में जाते हैं। तो बीजेपी का जो कमांडर के रूप में नरेंद्र मोदी एक लीडरशिप को लेकर अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो अपने साथ में छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को इस जंग में, इस लड़ाई में वो एक साथ लेके चलते हैं। तो ये जो लीडरशिप का कनेक्ट है वो आपको बेंगलुरु में भी दिख रहा है या देश के पूर्व किसी भी हिस्से में दिखता है। जब बात आप पूछ रहे थे 2014 से लेके और लगातार, तो इस चीज को देखिए फैसले लिए गए हैं वो इस दौर की कहानी है। चाहे आप वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का कर लीजिए, या आर्टिकल 370 का क्या देख लीजिए हटने का, या आप राम मंदिर, भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान, ये पहली बार 500 साल के बाद राम ये भी तमाम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं ये अब की बार के चुनाव में खासा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे विनोद जी। डेफिनेटली देखिए, ये उत्तर दक्षिण की जो बात हम लोग जब कभी करते हैं, ये एक फेक नैरेटिव से इस देश में बरसों तक इस चीज को रखा गया था। ये जितने रीजनल पार्टियां हैं उनका अपना अपना एक जो नैरेटिव रहा है, कभी एंटी नॉर्थ नैरेटिव है, कभी एंटी हिंदी नैरेटिव है, और ये नैरेटिव को लेके वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहाँ की रीजनल पार्टियां अपने जनरेशन को लाते रहे हैं पॉलिटिक्स में। ये भी इस दौर का कमाल है
कि जब आप देखते हैं कि काशी तमिल संगमम का ये आप जब साउथ इंडिया तमिलनाडु के वो सारे लोग जब काशी पहुंचते हैं, तमिल के अपनी वो भव्यता को वहां पे देखते हैं, अपनी वो पुरानी संस्कृति को वहां पाते हैं, तब जाके उनको लगता है कि अभी तक उत्तर दक्षिण की जो एक खाई बनाई गई थी वो नकली थी। तो इसको पाटने के साथ साथ आप जब देखते हैं कि भव्य नया पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ था और आपके सामने वो सेंगुल नेतृत्व करते हुए आगे आया था, तो दक्षिण भारत के वो चोल राज्य की जो परंपरा थी, उसकी जो संस्कृति थी सेंगुल की, वो सेंगुल जब दक्षिण भारत के लोगों ने देखा होगा तो उसे लगा होगा कि इस पार्लियामेंट में ये जो राजदंड है, ये जो ध्वज है, वो स्थापित है जो भारत की एक सांस्कृतिक एकता के लिए आप समझिए कि एक मजबूत कड़ी है। तो इतने सारे चीजें प्रयास होना अभी बाकी था। हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे तमिलनाडु में जब पीएम का रोड शो था, तो हम देखिए ये देश में कैसे नैरेटिव का था, कांग्रेस की वहां सरकारें थी, लगातार कांग्रेस की सरकारें तमिलनाडु में थी, लेकिन अगर ये कांग्रेस वहां 50 साल बाद भी अभी लौट नहीं पाई है तो उसकी वजह ये है कि वो या लगातार डीएम के भरोसे या कभी एआईडीएम के भरोसे वहां अपनी सब पार्टियों की वहां गतिविधि और इलेक्शन का फॉर्मेलिटी पूरा करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर 2024 में बीजेपी को लेके, अगर वहां एक बीजेपी एक पार्टी को लेके 9 छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में वहां नवरत्ना बना के लड़ने के लिए तैयार है और डीएम को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है आज, ये बात तो कभी कांग्रेस भी कर सकते थे, कांग्रेस के नेतृत्व भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो यही यूपी में कर सकते थे, बिहार में कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप अगर इस तरह से ये इंडिया गठबंधन जैसे गठबंधन, यूपीए गठबंधन जैसे गठबंधन लेके सिर्फ अगर ये फॉर्मूला पे काम करती रहेगी, ये नेतृत्व की अगर पूरी फिलोसफी कि ये हमको सिर्फ मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो शायद इस देश में अब इस चीज को बेईमानी लोग मानते हैं। लीडरशिप को कम से कम मोदी के पैरेलल में वो नेतृत्व देना होगा, तभी शायद मुझे लगता है कि देश एक फैसला लेने के हक में होगा। गौरव जी, विनोद जी अब बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा, ग्राउंड जीरो पर जब हम देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर 2019 में हमने 25 सीटें देखी और अब की बार 28, तो कहीं ना कहीं जो दारोमदार है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर है और अब की बार उनको और ज्यादा कोशिश करनी है कि 28 में से 28 सीटें आ पाए। किस तरह की रणनीति? बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो बीजेपी की इस बार की रणनीति कर्नाटक में रंग लाती हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया है और जेडीएस के साथ अलायंस है यहाँ पे। तो ये जो है एक कास्ट इक्वेशन के तहत अगर हम देखें तो वोकलिगा समुदाय जिस पर जो जेडीएस पार्टी का ज्यादातर उसमें डोमिनेशन है, तो ये जो वोकलिगा कास्ट के वोट हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये जो अलायंस है बीजेपी और जेडीएस के बीच, दोनों पार्टियां मिलकर ग्राउंड लेवल पर एक यूनाइटेड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कई आला नेता जो है मिलकर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मिलकर प्रचार किया। मैसूर क्षेत्र में कुमार स्वामी मौजूद थे इस वक्त। तो ये जो अलायंस की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोकलिगा वोट बेस है ओल्ड मैसूर रीजन में, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अलायंस के तहत देखें तो हम जेडीएस के लिए बेहद जरूरी था बीजेपी के साथ जुड़ना, क्योंकि जेडीएस की पहचान के लिए, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में जेडीएस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि जेडीएस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे। तो जेडीएस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा। तो बीजेपी इसका भरपूर कास्ट इक्वेशन का फायदा उठाते हुए ये रणनीति यहाँ पर तैयार की है और ये ग्राउंड लेवल पर दिख रही है कि किस तरह से आला नेता मिलकर प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से जेडीएस और बीजेपी कांग्रेस सरकार की कई खामियों को लोगों के सामने रख रहे हैं, उनकी कमजोरियां गिना रहे हैं
और उनके जो स्कीम्स है उसे एक्सपोज करते हुए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये रणनीति बीजेपी के पक्ष में रहेगी। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती, जैसे कि मैंने बताया कि जी। कुछ सीट पर टिकट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया है। तो ये भी एक थोड़ा अंडरकरेंट बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी जब भी मैदान में उतरती है एज ए पार्टी, जब आखिरी वक्त तक जब वोटिंग तक बीजेपी इस पूरे मामले को सुलझा लेती है और एकजुट होकर हर हर जीत को हासिल कर लेती है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये चुनौती कुछ हद तक बीजेपी के सामने अभी भी रही। कम से कम 10 सीटों पर कुछ बीजेपी के नेता नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। जी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इम्पोर्टेंट है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात कही जाती है, और जो बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि और प्रधानमंत्री का 10 साल प्रधानमंत्री ने केंद्र में जो शासन दिया, ये तमाम चीजें जो है इसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। तो ये जो है बीजेपी का एक एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज के तहत बीजेपी कर्नाटक में जो लक्ष्य रखा है 28 की 28 सीटें जीतने का, ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं कह सकते। जैसा कि अभी विनोद जी बता रहे थे, तो मोदी है तो मुमकिन है। तो जी। यही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, और उन्हें यही कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर ये फॉर्मूला बीजेपी चलाती आ रही है पिछले 2 टर्म से, तो इस तीसरे टर्म में ये फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा? तो इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी इन तमाम फैक्टर्स को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, और ग्राउंड पर यही रियलिटी नजर आ रही है कि कैसे बीजेपी एक एक चप्पे पर, एक एक बूथ पर अपनी मजबूती, देखिए बीजेपी का सबसे ज्यादा उनकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है। बूथ पर बीजेपी कैसे पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी बनाती है, एक एक बूथ पर एक एक लीडर को तैयार करती है। और बीजेपी की एक और खासियत है कि वो एक हर कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जो फुट सोल्जर्स है, उन्हें भी अहमियत देती है, उन्हें पार्टी का हिस्सा मानती है। तो ये जो है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत बीजेपी अपनी जीत में बदलती जा रही है, और इस चुनाव में भी ये रणनीति साफ नजर आ रही है। आयशा, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी हम देख रहे हैं, और बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं वो इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ भी रही हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा चेंज मेकर साबित होगा 2024 के चुनाव में? जी बिल्कुल, महिलाएं एक अहम वोट बैंक बन गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो योजनाएं लागू की है, और वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो ये जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, ये जो है महिलाएं जानती हैं कि कैसे उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार कर रही है बीजेपी। महिलाओं को महज घर में उज्ज्वला स्कीम के जरिए उन्हें घर में गैस के सिलेंडर देकर वहीं तक सीमित नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये महिलाएं जानती हैं, यही वजह है कि महिलाएं अब कई घरों में महिलाएं डिसीजन मेकर्स बन गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्पसंख्यक समुदाय में भी महिलाएं इस बात से वाकिफ है कि कैसे उन्हें जो उनके जो पुराने ख्यालात हैं उनसे बाहर निकाल कर उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बात की एक्सेप्टेंस हर वर्ग की महिला, हर क्षेत्र की महिलाओं में साफ नजर आ रही है। तो ये बीजेपी की एक ताकत है, बीजेपी की एक शक्ति है, और बीजेपी इन तमाम चीजों पर निर्भर है। और बीजेपी को इस बात का आश्वासन भी है कि ये जो तमाम जो फैक्टर्स है, जो तबका है, महिला हो या फिर लाभार्थी तबका हो या युवा तबके, तमाम जो तबके हैं वो बीजेपी के पक्ष में बीजेपी को वोट देंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी वोट मांगने के लिए इस तरह के रोड शो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उनकी जो शख्सियत है, उसको पूरी तरह से बीजेपी भुनाती है, और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके जरिए लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, लोगों के साथ उनका कनेक्ट होता है। तो ये जो है बीजेपी की कामयाबी का मंत्र बनता हुआ जा रहा है, और ये जो है
जाहिर सी बात है इतिहास में आगे चलकर ये मोदी मंत्र बनेगा और बीजेपी इस मंत्र को अपनी जीत के लिए आगे भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाती रहेगी। बिल्कुल। आयशा बनी रही हमारे साथ। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक आकलन करना भी ज़रूरी है कि आज हमने देखा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने आया, साथ ही साथ हमने और भी जो पार्टियां हैं और साफ तौर पर क्षेत्रीय पार्टी जो इंडी गठबंधन में हैं, उनके भी अलग अलग मैनिफेस्टो देखे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इंडी गठबंधन बन रहा है तो एक विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जो बिखराव की स्थिति है वो अब की बार के चुनाव में खासतौर पर अगर हम देखें तो वो कितना बड़ा अलग डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। देखिए गौरव, हम लोग बात करके हैं इससे पहले भी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबी को लेके और गारंटी को लेके अगर कुछ बातें करती है तो उसमें अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को घोषणा करने से रोकती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव के भले ही अभी एक भी लोकसभा के में सांसद नहीं है, लेकिन अगर वो 2024 के इलेक्शन में आए हैं तो उनको ये घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हर बहनों को 1 लाख रुपया देंगे। उनको ये घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ओपीएस लागू कर लेंगे। तो अब सवाल ये है कि उनको ये नहीं कोई पूछ रहा है कि भाई ओपीएस लागू कर लेंगे आप, तो कैसे कर लेंगे, ये उनका टेंशन नहीं है, उनको घोषणा करना है। तो 25 गारंटी भी राहुल गांधी के कमोबेश वही है कि वो 5 न्याय 25 गारंटी उनको घोषणा करना है और उन्होंने घोषणा किया है। आज मैं जब देख रहा था कि जो बीजेपी के संकल्प पत्र पे पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आ रहे थे डिफरेंट पोजीशंस के भी और इंडिया गठबंधन के खास करके, तो हर पॉलिटिकल पार्टी कंपैरिजन घोषणा गारंटी के बदले वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नैरेटिव पे जा रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अगर आपके गारंटी में इतना दम है, जो आप न्याय, पिछली बार भी राहुल गांधी ने एक न्याय योजना लाई थी जिसमें 72,000 रुपया वो मिनिमम आय की गारंटी उन्होंने दी थी, और सवाल ये है कि ये 72,000 मिनिमम गारंटी योजना इतना शानदार इकोनॉमिक फार्मूला था, तो कर्नाटक में आते आते 72,000 का 2,000 क्यों हो गया? जो गारंटी योजना में आप महिलाओं को सिर्फ, वो भी आप कैप लगा के 1 करोड़ महिलाओं को आप गृह लक्ष्मी योजना का सुविधा आपने देने की बात कही है, जिसमें कई महिलाओं का अभी भी कंप्लेन है कि उसका रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, तो उसको आप 2,000 दे रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि जैसे ही अगले दिन हमारी सरकार बनेगी और 8,500 रुपया आपके अकाउंट में सीधे पहुंचेगी, 1 लाख रुपया सीधे आपके अकाउंट में साल में आएगा, आपकी गरीबी दूर। तो सवाल ये है कि आप जनता के बीच में इसको एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे ले जाएंगे, ये मॉड्यूल आपके पास में नहीं है। तो शायद जनता आप शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पास भी अगर आपने ओपीएस लेके इलेक्शन हिमाचल में लड़ा और जीता, आपने कर्नाटक में ओपीएस को लेके आए और इलेक्शन जीता, लेकिन ओपीएस ना आपने कर्नाटक में लागू किया न हिमाचल में लागू किया, और 2024 के मैनिफेस्टो में आपने ओपीएस पे चर्चा ही बंद कर दी। तो रीजनल पार्टी में अगर अखिलेश यादव ओपीएस दे रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव ओपीएस दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? लेकिन सवाल यही उठता है जी सवाल यही मैं बताता हूँ जी इम्पोर्टेंट चीज बात यह है कि राहुल गांधी यही गारंटी पे नहीं रुकते हैं। जब वो आते हैं सामाजिक न्याय की बात करके, जो कांग्रेस शायद पहली बार इस तरह के मैनिफेस्टो का ये किया होगा, और जब वो आते हैं सामाजिक न्याय में की जाति गणना, तो शायद उनके लिए कर्नाटक, इसी कर्नाटक में उदाहरण है कि 2017 की जाति गणना की रिपोर्ट जो है वो रखे आपने इतने सालों के बाद दूसरी सरकार सिद्धारमैया की आई हुई थी, और भारी हिलोहज्जत के बाद उसने कमीशन की रिपोर्ट ली है, लेकिन आज तक उसको आप पब्लिश कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि अगर आप ये जाति समीकरण को लाए तो शायद कर्नाटक में उनके खिलाफ में एक दूसरा माहौल बन सकता है। तो सवाल ये है कि जहां आपका स्टेट है वहां आप इन चीजों का, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये अगर आप अपने शासित राज्यों में करके दिखाते हैं तो शायद
इसका इम्पैक्ट एक नेशन वाइड भी पड़ता है। लेकिन जब आप वहां नहीं दिखाते हैं और दूसरे जगह ये बात करते हैं तो शायद लोग इसको पॉलिटिक्स मानते हैं कि क्यों आप राहुल गांधी जो हर पब्लिक रैलियों में जिसकी जितनी आबादी उतना हक की बात करते थे, और पीएम मोदी ने जैसे ही इसका एक बार वो दिया कि साउथ इंडिया के लोगों का क्या गुनाह है कि जिसकी आबादी उतना हक में कल का पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेगी, और साउथ इंडिया ने अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है तो उसका क्या कसूर था कि उस पॉपुलेशन में वो पीछे रह जाए। तो ये चीज अगर आप बिना सोचे समझे अपना नैरेटिव बनाते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं, नेता शायद ये भूल जाते हैं कि इसका रिपरकशन भी होता है, इसका जवाब भी लोग देने लगते हैं, तब आप अपने चीजों से वापस हो जाते हैं। और कर्नाटक में आप जब इस सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो लोग आपको याद दिला देंगे कि आपका सामाजिक न्याय में जो सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था, सोशल आपने सेंसस कराया था, उसका क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं तो ये दौर 2013, 14 या 9, 10 का नहीं है, 2024 का दौर है। इस दौर में बहुत चीजें पीछे छूट गई है। ये बदला हुआ भारत है और बदले हुए भारत के लिए आपको एक कोई नया संकल्प लेके आना होगा, नई सियासत लेके आनी होगी जो नरेंद्र मोदी अभी लोगों के सामने में रखा है। तो ये चीजें शायद अपोजिशन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक बड़ा अंतर भी यहाँ पर सामने नजर भी आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर सामने आते हैं। ऐसे में अगर हम कांग्रेस की या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, वो रिपोर्ट कार्ड में अपने क्या दिखाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा 2004 से लेकर 14 तक कितने घोटाले हुए थे। देखिए गौरव, सवाल ये है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के समय में हर अपोजिशन पार्टीज को हक बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे, हर पब्लिक में वो मीटिंग में उस बात को रखे। लेकिन सवाल ये है कि आपको पूछने में नैरेटिव्स को थोड़ी देर के लिए आपको साइडलाइन रखना पड़ेगा। जब हम अभी सुन रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इस प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया, तो शायद इस देश में लोग आपको नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक चीज लेके आते हैं कि ये इन चीजों में ऐसा नहीं हुआ, तो आपका सवाल करने का हक होता है। आपने इंदिरा आवास योजना के नाम से बरसों तक चला रखा था, 20,000 रुपया आपकी एक मदद गरीब लोगों को मिलती थी, कितने लोगों को पैसा मिलता था, आधे से अधिक पैसे जो है वो हवाई हो जाती थी। अगर आज प्राइम मिनिस्टर का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके नाम पे अगर लोगों को पक्का मकान मिल रहा है और जो डीबीटी मेथड से उसके पास पैसे सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है, तो शायद लोग इस योजना का मतलब पहली बार समझे होंगे। जितने भी सरकारी इस तरह की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री का जो इसकी किसान सम्मान निधि योजना हो, ये दूसरी फसल बीमा योजना हो, जितनी स्कीमें हैं, अगर आज की तारीख में डीबीटी स्कीम से सीधे अकाउंट में पहुंचता है तो करप्शन के मामले में इस देश ने पहली बार देखा कि डिजिटल मेथड ने कैसे करप्शन को चेक किया है। तो ये सारे बहुत सारे उदाहरण है। अभी भी विपक्ष के पास में ऐसा नहीं है कि उनके पास में कहने के लिए या प्रधानमंत्री बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये उनका नहीं है। बिल्कुल, ये सब तमाम जो पॉइंट्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं और अब की बार लगता है कि जो चुनाव है उसमें ये इम्पैक्ट डालते भी नजर आएंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। साथ ही साथ आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंगलोर में माता की सन्मान्य नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, सन्मान्य नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, सन्मान्य नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, भारत माता की, भारत माता की। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 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 ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत।
आगे चलकर ये मोदी मंत्र बनेगा और नॉर्थ नैरेटिव है, कभी एंटी हिंदी नैरेटिव है, और ये नैरेटिव को लेके वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहाँ की रीजनल पार्टियां अपने जनरेशंस को लाते रहे हैं पॉलिटिक्स में। ये भी इस दौर का कमाल है कि जब आप देखते हैं कि काशी तमिल संगमम का में आप जब साउथ इंडिया तमिलनाडु के वो सारे लोग जब काशी पहुंचते हैं, तमिल के अपनी वो भव्यता को वहां पे देखते हैं, अपनी वो पुरानी संस्कृति को वहां पाते हैं, उनको लगता है कि अभी तक उत्तर दक्षिण की जो एक खाई बनाई गई थी वो नकली थी। तो इसको पाटने के साथ साथ आप जब देखते हैं कि भव्य नया पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ था और आपके सामने वो सेंगुल नेतृत्व करते हुए आगे आया था, तो दक्षिण भारत के वो चोल राज्य की जो परंपरा थी, उसकी जो संस्कृति थी सेंगुल की, वो सेंगुल जब दक्षिण भारत के लोगों ने देखा होगा तो उसे लगा होगा कि इस पार्लियामेंट में ये जो राजदंड है, ये जो ध्वज है, वो स्थापित है जो भारत की एक सांस्कृतिक एकता के लिए आप समझिए कि एक मजबूत कड़ी है। तो इतने सारे चीजें प्रयास होना अभी बाकी था। हम लोग पिछले दिन बात कर रहे थे तमिलनाडु में जब पीएम का रोड शो था, तो हम देखिए ये देश में कैसे नैरेटिव का था। कांग्रेस की वहां सरकारें थी, लगातार कांग्रेस की सरकारें तमिलनाडु में थी, लेकिन अगर ये कांग्रेस वहां 50 साल बाद भी अभी लौट नहीं पाई है तो उसकी वजह ये है कि वो या लगातार डीएम के भरोसे या कभी एआईडीएम के भरोसे वहां अपनी सब पार्टियों की वहां गतिविधि और इलेक्शन का फॉर्मेलिटी पूरा करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर 2024 में बीजेपी को लेके, अगर वहां एक बीजेपी एक पार्टी को लेके 9 छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में वहां नवरत्ना बना के लड़ने के लिए तैयार है और डीएम को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है आज, ये बात तो कभी कांग्रेस भी कर सकते थे, कांग्रेस के नेतृत्व भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो यही यूपी में कर सकते थे, बिहार में कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप अगर इस तरह से ये इंडिया गठबंधन जैसे गठबंधन, यूपीए गठबंधन जैसे गठबंधन लेके सिर्फ अगर ये फॉर्मूला पे काम करती रहेगी, ये नेतृत्व की अगर पूरी फिलोसफी कि ये हमको सिर्फ मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो शायद इस देश में अब इस चीज को बेईमानी लोग मानते हैं। लीडरशिप को कम से कम मोदी के पैरेलल में वो नेतृत्व देना होगा, तभी शायद मुझे लगता है कि देश एक फैसला लेने के हक में होगा। गौरव जी, विनोद जी अब बने रहिए हमारे साथ। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा, ग्राउंड जीरो पर जब हम देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश नजर आता है, क्योंकि साफ तौर पर 2019 में हमने 25 सीटें देखी और अब की बार 28, तो कहीं ना कहीं जो दारोमदार है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर है और अब की बार उनको और ज्यादा कोशिश करनी है कि 28 में से 28 सीटें आ पाए। किस तरह की रणनीति? बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो बीजेपी की इस बार की रणनीति कर्नाटक में रंग लाती हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया है और जेडीएस के साथ अलायंस है यहाँ पे। तो ये जो है एक कास्ट इक्वेशन के तहत अगर हम देखें तो वोकलिगा समुदाय जिस पर जो जेडीएस पार्टी का ज्यादातर उसमें डोमिनेशन है, तो ये जो वोकलिगा कास्ट के वोट हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये जो अलायंस है बीजेपी और जेडीएस के बीच, ये दोनों पार्टियां मिलकर ग्राउंड लेवल पर एक यूनाइटेड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कई आला नेता जो है मिलकर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मिलकर प्रचार किया मैसूर क्षेत्र में। कुमार स्वामी मौजूद थे इस वक्त। तो ये जो अलायंस की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोकलिगा वोट बेस है ओल्ड मैसूर रीजन में, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अलायंस के तहत देखें तो हम जेडीएस के लिए बेहद जरूरी था बीजेपी के साथ जुड़ना, क्योंकि जेडीएस की पहचान के लिए, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में जेडीएस का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि जेडीएस के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे। तो जेडीएस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब बीजेपी के साथ जुड़ना पड़ा। तो बीजेपी इसका भरपूर कास्ट इक्वेशन का फायदा उठाते हुए ये रणनीति यहाँ पर तैयार की है और ये ग्राउंड लेवल पर दिख रही है कि किस तरह से आला नेता मिलकर प्रचार कर रहे हैं और किस तरह से जेडीएस और बीजेपी
कांग्रेस सरकार की कई खामियों को लोगों के सामने रख रहे हैं, उनकी कमजोरियां गिना रहे हैं और उनके जो स्कीम्स है उसे एक्सपोज करते हुए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये रणनीति बीजेपी के पक्ष में रहेगी। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती, जैसे कि मैंने बताया कि जी। कुछ सीट पर टिकट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन उन्हें मना लिया गया है। तो ये भी एक थोड़ा अंडरकरेंट बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी जब भी मैदान में उतरती है एज ए पार्टी, जब आखिरी वक्त तक जब वोटिंग तक बीजेपी इस पूरे मामले को सुलझा लेती है और एकजुट होकर हर जीत को हासिल कर लेती है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये चुनौती कुछ हद तक बीजेपी के सामने अभी भी रही। कम से कम 10 सीटों पर कुछ बीजेपी के नेता नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात कही जाती है और जो बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि और प्रधानमंत्री का 10 साल प्रधानमंत्री ने केंद्र में जो शासन दिया, ये तमाम चीजें जो है इसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। तो ये जो है बीजेपी का एक एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज के तहत बीजेपी कर्नाटक में जो लक्ष्य रखा है 28 की 28 सीटें जीतने का, ये बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं कह सकते। जैसा कि अभी विनोद जी बता रहे थे, तो मोदी है तो मुमकिन है। तो यही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और उन्हें यही कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर ये फॉर्मूला बीजेपी चलाती आ रही है पिछले 2 टर्म से, तो इस तीसरे टर्म में ये फॉर्मूला क्यों नहीं चलेगा? तो इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी इन तमाम फैक्टर्स को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और ग्राउंड पर यही रियलिटी नजर आ रही है कि कैसे बीजेपी एक एक चप्पे पर, एक एक बूथ पर अपनी मजबूती, देखिए बीजेपी का सबसे ज्यादा उसकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है। बूथ पर बीजेपी कैसे पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी बनाती है, एक एक बूथ पर एक एक लीडर को तैयार करती है। और बीजेपी की एक और खासियत है कि वो एक हर कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता जो फुट सोल्जर्स है, उन्हें भी अहमियत देती है, उन्हें पार्टी का हिस्सा मानती है। तो ये जो है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत बीजेपी अपनी जीत में बदलती जा रही है और इस चुनाव में भी ये रणनीति साफ नजर आ रही है। आयशा, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी हम देख रहे हैं और बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं वो इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ भी रही हैं। ऐसे में ये कितना बड़ा चेंज मेकर साबित होगा 2024 के चुनाव में? जी बिल्कुल, महिलाएं एक अहम वोट बैंक बन गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि महिलाएं जानती हैं कि केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो योजनाएं लागू की है और वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो ये जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, ये जो है महिलाएं जानती हैं कि कैसे उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार कर रही है बीजेपी। महिलाओं को महज घर में उज्ज्वला स्कीम के जरिए उन्हें घर में गैस के सिलेंडर देकर वहीं तक सीमित नहीं किया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये महिलाएं जानती हैं। यही वजह है कि महिलाएं अब कई घरों में महिलाएं डिसीजन मेकर्स बन गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्पसंख्यक समुदाय में भी महिलाएं इस बात से वाकिफ है कि कैसे उन्हें जो उनके जो पुराने ख्यालात हैं उनसे बाहर निकाल कर उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बात की एक्सेप्टेंस हर वर्ग की महिला, हर क्षेत्र की महिलाओं में साफ नजर आ रही है। तो ये बीजेपी की एक ताकत है, बीजेपी की एक शक्ति है और बीजेपी इन तमाम चीजों पर निर्भर है और बीजेपी को इस बात का आश्वासन भी है कि ये जो तमाम जो फैक्टर्स है, जो तबका है, महिला हो या फिर लाभार्थी तबका हो या युवा तबके, तमाम जो तबके हैं वो बीजेपी के पक्ष में बीजेपी को वोट देंगे। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी वोट मांगने के लिए इस तरह के रोड शो करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उनकी जो शख्सियत है,
उसको पूरी तरह से बीजेपी भुनाती है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके जरिए लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, लोगों के साथ उनका कनेक्ट होता है। तो ये जो है बीजेपी की कामयाबी का मंत्र बनता हुआ जा रहा है और ये जो है जाहिर सी बात है इतिहास में आगे चलकर ये मोदी मंत्र बनेगा और बीजेपी इस मंत्र को अपनी जीत के लिए आगे भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाती रहेगी। बिल्कुल आयशा बनी रही है हमारे साथ। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक आकलन करना भी जरूरी है कि आज हमने देखा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने आया, साथ ही साथ हमने और भी जो पार्टियां हैं और साफ तौर पर क्षेत्रीय पार्टी जो इंडी गठबंधन में हैं उनके भी अलग अलग मैनिफेस्टो देखे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इंडी गठबंधन बन रहा है तो एक विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन वहां जो बिखराव की स्थिति है वो अब की बार के चुनाव में खासतौर पर अगर हम देखें तो वो कितना बड़ा अलग डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। देखिए गौरव, हम लोग बात कर किए हैं इस पे पहले भी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबी को लेके और गारंटी को लेके अगर कुछ बातें करती है तो उसमें अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को घोषणा करने से रोकती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव के भले ही अभी एक भी लोकसभा के में सांसद नहीं है, लेकिन अगर वो 2024 के इलेक्शन में आए हैं तो उनको ये घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हर बहनों को 1 लाख रुपया देंगे। उनको ये घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम ओपीएस लागू कर लेंगे। तो अब सवाल ये है कि उनको ये नहीं कोई पूछ रहा है कि भाई ओपीएस लागू कर लेंगे आप, तो कैसे कर लेंगे, ये उनका टेंशन नहीं है, उनको घोषणा करना है। तो 25 गारंटी भी राहुल गांधी की कमोबेश वही है कि वो 5 न्याय 25 गारंटी उनको घोषणा करना है और उन्होंने घोषणा किया है। आज मैं जब देख रहा था कि जो बीजेपी के संकल्प पत्र पे पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आ रहे थे डिफरेंट पोजीशंस के भी और इंडिया गठबंधन के खास करके, तो हर पॉलिटिकल पार्टी कंपैरिजन घोषणा गारंटी के बदले वो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नैरेटिव पे जा रहे थे। तो अब सवाल ये है कि अगर आपके गारंटी में इतना दम है, जो आप न्याय, पिछली बार भी राहुल गांधी ने एक न्याय योजना लाई थी जिसमें 72,000 रुपया वो मिनिमम आय की गारंटी उन्होंने दी थी, और सवाल ये है कि ये 72,000 मिनिमम गारंटी योजना इतना शानदार इकोनॉमिक फार्मूला था, तो कर्नाटक में आते आते 72,000 का 2,000 क्यों हो गया? जो गारंटी योजना में आप महिलाओं को सिर्फ भी आप कैप लगा के 1 करोड़ महिलाओं को अपनी लक्ष्मी योजना का सुविधा आपने देने की बात कही है, जिसमें कई महिलाओं का अभी भी कंप्लेन है कि उसका रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, तो उसको आप 2,000 दे रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि जैसे ही अगले दिन हमारी सरकार बनेगी और 8,500 रुपया आपके अकाउंट में सीधे पहुंचेगी, 1 लाख रुपया सीधे आपके अकाउंट में साल में आएगा, आपकी गरीबी दूर। तो सवाल ये है कि आप जनता के बीच में इसको एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे ले जाएंगे, ये मॉड्यूल आपके पास में नहीं है। तो शायद जनता आप शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पास भी अगर आपने ओपीएस लेके इलेक्शन हिमाचल में लड़ा और जीता, आपने कर्नाटक में ओपीएस को लेके आए और इलेक्शन जीता, लेकिन ओपीएस ना आपने कर्नाटक में लागू किया न हिमाचल में लागू किया, और 2024 के मैनिफेस्टो में आपने ओपीएस पे चर्चा ही बंद कर दी। तो रीजनल पार्टी में अगर अखिलेश यादव ओपीएस दे रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव ओपीएस दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? लेकिन सवाल यही उठता है जी सवाल यही मैं बताता हूँ जी इम्पोर्टेंट चीज बात यह है कि राहुल गांधी यही गारंटी पे नहीं रुकते हैं। जब वो आते हैं सामाजिक न्याय की बात करके, जो कांग्रेस शायद पहली बार इस तरह के मैनिफेस्टो का ये किया होगा, और जब वो आते हैं सामाजिक न्याय में की जाति गणना, तो शायद उनके लिए कर्नाटक, इसी कर्नाटक में उदाहरण है 2017 की जाति गणना की रिपोर्ट जो है वो रखे आपके इतने सालों के बाद दूसरी सरकार सिद्धारमैया की आई हुई थी, और भारी हिलोहज्जत के बाद उसने कमीशन की रिपोर्ट की है, लेकिन आज तक उसको आप पब्लिश कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि अगर आप ये जाति समीकरण को लाए तो कर्नाटक में उनके खिलाफ में एक दूसरा माहौल बन सकता है। तो सवाल ये है कि जहां आपका स्टेट है वहां आप इन चीजों का जितनी आबादी उसका उतना हक, ये अगर आप अपने शासित राज्यों में करके दिखाते हैं तो शायद
इसका इम्पैक्ट एक नेशन वाइड भी पड़ता है। लेकिन जब आप वहां नहीं दिखाते हैं और दूसरे जगह ये बात करते हैं तो शायद लोग इसको पॉलिटिक्स मानते हैं कि क्यों आप राहुल गांधी जो हर पब्लिक रैलियों में जिसकी जितनी आबादी उतना हक की बात करते थे, और पीएम मोदी ने जैसे ही इसका एक बार वो दिया कि साउथ इंडिया के लोगों का क्या गुनाह है कि जिसकी आबादी उतना हक में कल का पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेगी, और साउथ इंडिया ने अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है तो उसका क्या कसूर था कि उस पॉपुलेशन में वो पीछे रह जाए। तो ये चीज अगर हम बिना सोचे समझे अपना नैरेटिव बनाते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं, नेता शायद ये भूल जाते हैं कि इसका रिपरकशन भी होता है, इसका जवाब भी लोग देने लगते हैं। तब आप अपने चीजों से वापस हो जाते हैं। और कर्नाटक में आप जब इस सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो लोग आपको याद दिला देंगे कि आपका सामाजिक न्याय में जो सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था, सोशल आपने सेंसस कराया था, उसका क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं तो ये दौर 2013, 14 या 9, 10 का नहीं है, 2024 का दौर है। इस दौर में बहुत चीजें पीछे छूट गई है। ये बदला हुआ भारत है और बदले हुए भारत के लिए आपको एक कोई नया संकल्प लेके आना होगा, नई सियासत लेके आनी होगी जो नरेंद्र मोदी अभी लोगों के सामने में रखा है। तो ये चीजें शायद अपोजिशन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, एक बड़ा अंतर भी यहाँ पर सामने नजर भी आता है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर सामने आते हैं। ऐसे में अगर हम कांग्रेस की या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, वो रिपोर्ट कार्ड में अपने क्या दिखाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा 2004 से लेकर 14 तक कितने घोटाले हुए थे। तो ये गौरव सवाल ये है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के समय में हर अपोजिशन पार्टीज को हक बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे, हर पब्लिक में वो मीटिंग में उस बात को रखे। लेकिन सवाल ये है कि आपको पूछने में नैरेटिव्स को थोड़ी देर के लिए आपको साइडलाइन रखना पड़ेगा। जब हम अभी सुन रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इस प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया, तो शायद इस देश में लोग आपको नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक चीज लेके आते हैं कि ये इन चीजों में ऐसा नहीं हुआ, तो आपका सवाल करने का हक होता है। आपने इंदिरा आवास योजना के नाम से बरसों तक चला रखा था। 20,000 रुपया आपकी एक मदद गरीब लोगों को मिलती थी, कितने लोगों को पैसा मिलता था, आधे से अधिक पैसे जो है वो हवाई हो जाती थी। अगर आज प्राइम मिनिस्टर का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके नाम पे अगर लोगों को पक्का मकान मिल रहा है और जो डीबीटी मेथड से उसके पास पैसे सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है, तो शायद लोग इस योजना का मतलब पहली बार समझे होंगे। जितने भी सरकारी इस तरह की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री का जो इसकी किसान सम्मान निधि योजना हो, ये दूसरी फसल बीमा योजना हो, जितनी पहली बार देखा कि डिजिटल मेथड ने कैसे करप्शन को चेक किया है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी भी विपक्ष के पास में ऐसा नहीं है कि उनके पास में कहने के लिए या प्रधानमंत्री बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये उनका नहीं है। बिल्कुल, ये सब तमाम जो पॉइंट्स हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं और अब की बार लगता है कि जो चुनाव है उसमें ये इम्पैक्ट डालते भी नजर आएंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार 10% special discount for teachers, police, journalists and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just rupees 31,000 per month installment, 10% special discount for teachers, police, journalists, and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just rupees 31,000 per month installment,
10% special discount for teachers, police, journalists, and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just rupees 31,000 per month installment, 10% special discount for teachers, police, journalists, and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just rupees 31,000 per month installment, 10% special discount for teachers, police, journalists, and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. Affordable. बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। आयशा, कर्नाटक को दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। 2019 में भी हमने देखा 28 में से 25 सीटें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्राफ तैयार करने की कोशिश और दक्षिण भारत में बीजेपी को और ज्यादा हुई नजर आएगी। कर्नाटक बीजेपी का दक्षिण का द्वार माना जाता रहा है। हमेशा से बीजेपी कर्नाटक में काफी मजबूत रही है और ये जो क्षेत्र है मैंगलोर करावली क्षेत्र है, यहीं से बीजेपी की शुरुआत हुई थी। उड़पी से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की थी कई दशक पहले और यहाँ से सिर्फ एक विधायक के जीतने के बाद से बीजेपी का करीब 3 दशक पहले का सफर जो है उसके बाद बीजेपी को दक्षिण का द्वार बना चुकी थी और यहाँ पर बीजेपी ने लगातार 3 बार अपनी सरकार भी बना ली है और इस बार बीजेपी मौजूदा लोकसभा है उसमें बीजेपी के 28 में से 25 जी और बैंगलोर वो क्षेत्र है जहां से बीजेपी हमेशा से 1991 से जीतती आई है और प्रधानमंत्री जब दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण का फोकस है जो दक्षिण भारत में करीब 130 सीटें हैं उनमें से देखा जाए तो 28 सीटें जो है बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में थे और जो बीजेपी ने अलायंस किया है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ उन्होंने स्टेज पर ये बात कही कि बीजेपी ना महज
20 या 25 सीटों पर नहीं बल्कि पूरे 28 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जीत इसलिए जरूरी, जो विजन उन्होंने तैयार किया है 2047 का, उसके लिए एक सीट बीजेपी के खाते में और जो बीजेपी का नारा है अब की बार को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। तो बीजेपी का दक्षिण का द्वार कर्नाटक है और कर्नाटक में बैंगलोर जो है ये बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ है। और बीजेपी ने इस बार नए चेहरे उतारे हैं। बैंगलोर से जो है ब्रिजेश को उतारा है, जो एक फौजी रिटायर्ड फौजी है। वो एक युवा चेहरा है। तो बीजेपी ने यहाँ से जो सिटिंग एमपी नलिन कटील उन्हें बदलकर इस युवा चेहरे को यहाँ पर उतारा है। तो जाहिर है बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर इस नए चेहरे पर लगाया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर भरोसा करते हुए युवाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। और बीजेपी हमेशा ये कहते हैं, प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि युवा जो है विकसित भारत की नींव है, न्यू इंडिया की नींव है। तो यही बीजेपी की एक ताकत है कि युवाओं को बीजेपी अपने साथ जोड़ती है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो चेहरे हैं वो काफी चुनिंदा है बीजेपी के। जो क्लीन और साफ छवि वाले इमेज इंदौर में कैंडिडेट की है। तो बीजेपी बैंगलोर में इस चुनाव में भी कोई ऐसा चुनाव में गलती नहीं करना चाहती। बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर इन दो कैंडिडेट प्रधानमंत्री ने अपने साथ यहाँ पर में साथ लेकर चल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और लोग उनका स्वागत यहाँ पर जमकर कर रहे हैं। तो बीजेपी की
दक्षिण में करीब 129 सीटें हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ बहुत जोर लगाया है दक्षिण भारत में, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या फिर आंध्रा और कर्नाटका। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी को उतनी मेहनत से नहीं करनी पड़ती है।